एंड विच रिजल्ट्स इन योर इनकन्सिस्टेंसी, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. बट if you want to store large amount of data, then we will use relational databases. In relational databases, the data is stored in multiple tables. Here the data is stored in the form of tables. और एक टेबल में डेटा स्टोर नहीं होता. The data is stored in the form of tables but in multiple tables, and these tables are linked via the common fields. अब ये fields क्या होते हैं? We will discuss it later. Now the next thing is, अब as you all know, database contains large amount of data, और databases are used to store large amount of data. अब इतना सारा डेटा मेंटेन करना, उसको क्रिएट करना, it's not possible for the human being. So we use a software that is called your DBMS. DBMS stands for your database management system. Actually a database management system or DBMS is a software that allows you to create, manipulate, retrieve and manage the data stored within a database. बच्चे, अगर आप आपने डेटाबेस को क्रिएट करना है, उसमें किस तरह से इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, कैसे उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है, यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज DBMS. ठीक है. सो DBMS इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, मैनेज, update or retrieve the information from the databases. Some of the most common DBMSs are Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, Microsoft Access or MySQL. Okay. Now the next is, there are different types of DBMS, but we will discuss RDBMS. Now what do you mean by RDBMS? Here R stands for relational. Okay, so its name is Relational Database Management System. As you know, DBMS is a software to create, manipulate, retrieve or storing the data within the database. So RDBMS is basically a software that is used to create, manage or update or retrieve the information from the relational databases. Now what is the meaning of relational? As we have already discussed, relational means where the data is stored in the form of multiple tables. Yes, here the data is stored in the form of multiple tables, और इन्हीं tables को हम क्या बोलते हैं? relational databases. और इस तरह के डेटाबेसेस को बनाने के लिए या मेंटेन करने के लिए या अपडेट करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, दैट इज़ योर RDBMS. आप माइक्रोसॉफ्ट सूट यूज़ करते हैं अपने सिस्टम्स में? यस, माइक्रोसॉफ्ट सूट विच इंक्लूड्स वेरियस सॉफ्टवेयर्स लाइक योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट. उसी में ही एक आता है माइक्रोसॉफ्ट असेस. That is an example of RDBMS. Microsoft SQL Server, MySQL or Oracle, these all are the examples of RDBMS. अच्छा बच्चे, ये डेटाबेस, अब डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. अब ये एक्चुअल में डेटा कहाँ पर स्टोर होता है? ठीक है. और कैसे DBMS, कहाँ ये DBMS होता है जो इसको मैनेज करता है? एवरीथिंग इज़ इन ऑन द डेटाबेस सर्वर्स. ओके. अब आप गूगल से इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, ठीक है. गूगल इज़ अ सर्च इंजन विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन सर्च एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नेट. ओके. अब उनके भी अपने सर्वर्स हैं वेयर दे कैन स्टोर देयर डेटा. ठीक है. और उनके डेटाबेस को मैनेज करने के लिए भी डेटाबेस सर्वर्स. सो व्हाट आर डेटाबेस सर्वर्स? दीज आर द
dedicated computers that are used to store those databases and run the softwares that are related to those databases. That is your DBMS. Okay, so now अब यूज़र क्या करता है, यूज़र इन डेटाबेस सर्वर में से डेटा को एक्सेस करता है यूजिंग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. अब हम गूगल से चीज़ को सर्च कर रहे हैं, हमें नहीं पता उसमें डेटा कैसे स्टोर्ड है, कैसे DBMS उसमें से डेटा को रिट्रीव करेगा एंड रिजल्ट्स योर क्वेरीज. सो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द फ्रंट एंड्स. हम फ्रंट एंड पे हैं, जो फ्रंट एंड पे होता है दैट इज़ योर यूज़र. ओके, एंड द सर्वर्स आर एट द बैक एंड्स. इस तरह से जो हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए, that is known as your client server model. So what are the database servers? Database server is basically a computer that is dedicated to database storage and retrieval. It is a computer systems that provides other computers with services related to accessing and retrieving the data from the database. Now in our syllabus we have to discuss relational databases. ठीक है, and relational databases and relational database management systems means how to create the database with the help of relational database management system. जब हम relational database की बात करते हैं तो database में कुछ concepts आते हैं that we should know. ठीक है, जो हमें पता होने चाहिए. अब database objects, what are the database objects? Database objects are used for storing and managing the information. database के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए और उस डेटा को मैनेज करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं, कुछ कंसेप्ट्स यूज़ होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस दोज कंसेप्ट्स. बच्चे, जब आप डेटा को टेबल्स की फॉर्म में सेव करते हैं और डेटा को रिलेशंस की फॉर्म में सेव करते हैं, देखो जब भी हम एक डेटाबेस को बनाते हैं ना, तो हम उस एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए डेटाबेस को क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल योर बैंक डेटाबेस. बैंक में डेटाबेस बनता है बैंक के कस्टमर, एम्प्लॉयज़ और उन सब के डेटा को सेव करने के लिए. ठीक है, अब रेलवे डेटाबेस है दैट स्टोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द रेलवेज. ओके, अब स्कूल में अगर डेटाबेस है तो दैट इज़ रिलेटेड टू द स्टूडेंट एंड टीचर. ओके, स्टूडेंट एंड टीचर इंफॉर्मेशन. नाउ जब आप डेटाबेस को बनाते हो तो आप किसी पर्टिकुलर आइटम और एंटिटी से रिलेटेड उस डेटाबेस को क्रिएट करते हो. सो व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी और आइटम? आइटम और एंटिटी about which you are storing the information in the database, that is called your entity or item. Second thing, in database, in relational database, डेटा टेबल्स की फॉर्म में सेव किया जाता है. ठीक है, टेबल के ईच कॉलम को हम क्या बोलते हैं? फील्ड. फॉर एग्जांपल आई एम क्रिएटिंग अ डेटाबेस ऑफ स्टूडेंट. तो मैंने एक स्टूडेंट टेबल बनाया. नाउ उसमें मैंने स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, क्लास लिया. नाउ दिस नेम, रोल नंबर एंड क्लास, these are basically the attributes of the student. Attribute means the properties that are related to the students. ठीक है, सो उस कॉलम नेम को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड योर फील्ड और एट्रीब्यूट. नेक्स्ट, जब हम उस टेबल में इंफॉर्मेशन को सेव करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिया था रोल नंबर, नेम एंड क्लास. मैंने किया रोल नंबर 1, नेम रवि एंड क्लास 10th. नाउ दिस इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ रवि. एक रो को टेबल के अंदर बोलते हैं हम रिकॉर्ड, और दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड योर टपल. सो व्हाट इज़ रिकॉर्ड और टपल? रिकॉर्ड इज़ अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मेड अप ऑफ fields, yes, stored in your database.
ओके। अब जैसे जब आपने रिकॉर्ड के अंदर हर एक फील्ड की एक वैल्यू दी है, हर एक एट्रीब्यूट की, जैसे नेम एट्रीब्यूट था उसकी वैल्यू आपने दी रवि। नाउ रवि इज़ अ वैल्यू, ठीक है, क्या हो गया, रवि एक क्या बन गई, वैल्यू। रोल नंबर की वैल्यू आपने दी 1, सो दैट इज़ योर वैल्यू। सो व्हाट इज़ वैल्यू? वैल्यू इज़ द एक्चुअल टेक्स्ट और न्यूमेरिकल अमाउंट or data that you put in while adding the information to your database. Very good. Next is degree. बच्चे आप एक टेबल के अंदर, एक रिलेशन के अंदर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनाएंगे या जितने आप उस एक एंटिटी के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हो, मीन्स जितनी, फॉर एग्ज़ाम्पल एंटिटी स्टूडेंट, उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, लाइक स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, मार्क्स, ऑल दीज आर नोन एज योर एट्रीब्यूट्स। एक टेबल के अंदर जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ द टेबल और डिग्री ऑफ रिलेशन। सो what do you mean by degree? Number of attributes in a relation is called degree and number of rows in a table is called cardinality. Okay, और हम rows को क्या बोलते हैं? tuples. Now let's take an example of this table. Now this table is related to employee. In this table we take the attributes like I want to store the information of employee, तो मैंने इस टेबल में एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय की सैलरी एंड एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, आई हैव ऑलरेडी टेकन 5 एट्रीब्यूट्स इन दिस टेबल. सो व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस टेबल? दैट इज़ योर 5. नाउ अब इसमें मैंने 2 एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन को ऐड किया है. इट मीन्स इट्स कार्डिनैलिटी इज़ 2 and the database entity about which I want to store the information that is employee. So इसमें entity और item क्या हो गया? employee. attributes कौन से हो गए? employee code, employee name, employee address, employee salary and employee designation. how many number of rows are there? कितने records सेव किए इसमें आपने? 2. so number of records और tuples are 2. and how and for example what do you mean by values? जैसे आप नेम है, नेम एट्रीब्यूट में आपने 2 पर्सनस और 2 एम्प्लॉयज़ के नेम लिया, दैट इज़ अनिल एंड सुनील. सो दीज आर द वैल्यूज़. आपने एम्प्लॉय कोड लिया E001, E002. सो दीज आर द वैल्यूज़. नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज़ रिलेटेड टू योर डेटाबेस इज़ डेटाबेस कीज़. हमने डिस्कस किया था in relational database management systems, the data or in relational databases, the data is stored in the form of multiple tables and these tables are linked through keys or fields. अब now what do you mean by keys or fields? अब कुछ important keys होती हैं आपके पास, कुछ important fields होते हैं. The very first one is primary key. बच्चे जब भी हम रिलेशनल डेटाबेस में डेटाबेस को क्रिएट करते हैं टेबल्स की फॉर्म में, जितने भी टेबल्स बनते हैं हर एक टेबल में एक ऐसा फील्ड होना चाहिए जो थ्रू विच यू कैन आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड यूनिकली, जो आपके टेबल में से हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके. ठीक है, दैट फील्ड इज़ नोन एज योर प्राइमरी की. कई बार होता है कि हमारे टेबल में कोई ऐसा फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, तो वी कैन टेक द कलेक्शन ऑफ फील्ड्स ऑल्सो. सो व्हाट इज़ अ प्राइमरी की? अ प्राइमरी की इज़ अ सेट ऑफ one or more attributes that can uniquely identify each record in a table. बच्चे फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आपकी क्लास है 10th, ओके. अब 10th में हर एक स्टूडेंट की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नाउ कैन यू टेल मी कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी और कुछ एक ऐसा एट्रीब्यूट थ्रू विच आपको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके.
दैट इज़ योर नेम? नो, नेम तो एक या दो बच्चों का कॉमन सेम भी हो सकता है, ठीक है, आपकी क्लास में सेम नेम से स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, और मार्क्स भी सेम आ सकते हैं, बट योर रोल नंबर इज़ यूनिक। हर एक बच्चे का एक यूनिक रोल नंबर होता है एक क्लास में। यस, सो with the help of roll number we can uniquely identify each student in a class. So your roll number is acting as a primary key. अगर मुझे एक स्टूडेंट आपकी क्लास के टेबल्स में डेटा स्टोर करना है तो उसमें जब मैं आपका रोल नंबर लूँगी उसकी वैल्यू हर एक रिकॉर्ड के लिए डिफरेंट होगी। नाउ सेकेंड इज कैंडिडेट की। वो सारे एट्रीब्यूट्स या वो सारे फील्ड्स जो एक स्टूडेंट या जो एक एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल दोज एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड एज कैंडिडेट कीज। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शंस में कैंडिडेट्स खड़े होते हैं ना, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, बट उनमें से सेलेक्ट विनर कौन होता है? ओनली वन। सिमिलरली देयर आर मैनी कैंडिडेट कीज। व्हाट डू यू मीन बाय कैंडिडेट कीज? All attributes inside a table that can serve as a primary key. वो सारे attributes जो primary key बन सकते हैं, all those are called as candidate keys. But अब उनमें से primary key बनेगा कौन? एक ही, because ये एक this is a rule that there is only one primary key in a table. एक से ज़्यादा primary key नहीं होती एक टेबल के अंदर, ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन होती है प्राइमरी की, इट कैन नॉट कंटेन योर नल वैल्यू। नल वैल्यू मीन्स आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। आपकी क्लास में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसका कोई रोल नंबर एग्जिस्ट ना करे। ओके, सो प्राइमरी की हैज़ टू रूल्स दैट इट कैन नॉट बी नल एंड इट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। सो वो सारी कीज़, वो सारे एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की बन सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज कैंडिडेट कीज़। बस उन कैंडिडेट कीज़ में से एक की और एक एट्रीब्यूट विल एक्ट एज प्राइमरी की, और जितने बाकी कैंडिडेट्स बच जाते हैं दे आर कॉल्ड एज ऑल्टरनेट कीज़। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेट कीज़? अ कैंडिडेट की दैट इज़ नॉट अ प्राइमरी की इज़ कॉल्ड एन ऑल्टरनेट की। लास्ट की इज़ योर फॉरेन की। बिकॉज इन रिलेशनल डेटाबेस हम एक से ज़्यादा टेबल्स में डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। अब टू मेंटेन द रिलेशनशिप बिटवीन दीज मल्टीपल टेबल्स हमें कुछ कॉमन फील्ड्स लेने पड़ते हैं टेबल्स के अंदर, ठीक है। दो टेबल्स को इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू टेबल्स टुगेदर, तो उनमें एक जो कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एट्रीब्यूट है दैट इज़ नोन एज योर फॉरेन की। नाउ दिस फॉरेन की, दो तरह के टेबल होते हैं बेटा, एक प्राइमरी टेबल और एक सेकेंडरी टेबल। जब आप दो टेबल्स को ज्वाइन करते हो तो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन की? वो एट्रीब्यूट जो पहले टेबल में एज अ प्राइमरी की एक्ट करता है और दूसरे टेबल में वो नॉन प्राइमरी की एक्ट करता है, we can join the tables with the help of that foreign key. So what is foreign key? A non key attribute second table में वही primary key क्या बन जाती है आपकी? foreign key. So a key that acts as a primary key in one table that will act as a foreign key in another table, and this foreign key is basically responsible for the making the relationship between two tables. So what do you mean by foreign key? A non-key attribute whose values are derived from the primary key of some other table, जिसकी वैल्यू कहाँ से आती है? दूसरे टेबल, फर्स्ट टेबल के प्राइमरी की से। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने दो टेबल्स लिए, वन इज़ योर कोर्स टेबल एंड सेकेंड इज़ द स्टूडेंट टेबल। नाउ इन कोर्स टेबल हमने देयर टू फील्ड्स आर देयर और टू एट्रीब्यूट्स आर देयर, वन इज़ योर कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम। कि स्कूल में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं? द कोर्स आईडीज़ आर A004, C002 एंड सो ऑन, एंड कोर्स नेम अकॉर्डिंग टू दैट कोर्स नेम्स A004 का कोर्स नेम है अकाउंट्स, C002 कंप्यूटिंग, P301 दैट इज़ योर हिस्ट्री एंड सो ऑन। अब सपोज करो
student. In student table, this student ID is can be act as a primary key. Student का first name है, last name है. Now next is your course ID. अब ये student ने कौन सा course opt किया हुआ है, that is in the course ID. और if you want to see its name, you can see from the first table. For example, the student name, first student name is Jim, last name Black, Jim Black opt C002 course. So it means he opt computing. Okay, so this course ID will act as a foreign key in student table. Now is it clear? How many keys? The concept of keys: primary key that can uniquely identify each record in a table, candidate key, the keys that can act as a primary key, उसमें से एक एज अ प्राइमरी की बन जाती है कैंडिडेट कीज़ में से, रेस्ट आर कॉल्ड एज alternate keys, and foreign key is responsible for making the relationship between two tables. Now next topic is what are the advantages of databases. बच्चे डेटाबेस में हम डेटा को मल्टीपल टेबल्स में स्टोर करते हैं. ओके, मल्टीपल टेबल्स इन RDBMS वी स्टोर द डेटा इन द मल्टीपल टेबल्स. ओके, और सारे का सारा डेटा एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे सेव होता है. दैट्स वाई वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ड्यू टू दिस द रिडंडेंसी गेट्स रिड्यूस्ड. मीन्स इन डेटाबेसेस रिड्यूसेस रिडंडेंसी. पूरी तरह से रिडंडेंसी ख़त्म नहीं होती बट अप टू लार्ज एक्सटेंट. अब रिडंडेंसी रिमूव हो गई तो इट ऑल्सो रिड्यूसेस the chances of inconsistency. What is the meaning of inconsistency? हाँ जी, if there are multiple copies then that multiple copies may be different. ठीक है, that is the problem of inconsistency. अगर data redundancy reduce हो जाती है तो that also results in reducing data inconsistency. Next is sharing of data. It means not only that existing application can share the data in database, but also that new application can be developed or to operate against that same stored data. Okay, means you can share the data also. आप देखो, आप बैंक का डेटाबेस है या स्कूल में स्टूडेंट्स का डेटाबेस है, आप कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, मतलब विच पर्सन हैज़ द अथॉरिटी टू एक्सेस दैट. ओके, तो you can share the data. Next is database enforce standards. Whenever you enter the data into the database, you have to follow some standards. So while entering the data in the database enforce standards because there is a centralized control of database. जो आपका DBA है, DBA is basically database administrator that can ensure कि all the applicable standards are followed in the representation of the data. Next is database can ensure data security. Data security is basically referred to protection of data against accidents or intentional disclosure to unauthorized person. कि कोई भी unauthorized person आपके डेटा को एक्सेस ना कर सके. बच्चे, अब सपोज मेरा बैंक अकाउंट है, ठीक है, आई हैव अ बैंक अकाउंट. ठीक है, अब अपने बैंक अकाउंट को मैं ही एक्सेस कर सकती हूँ जिसके पास अथॉरिटी है. आई हैव अ पासवर्ड, और अगर मुझे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करनी है, आई हैव द पासवर्ड एंड सम सिक्योर प्रोसीजर्स आर देयर. सो डेटा सिक्योरिटी कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ databases. Now, in addition to advantages of databases, there are some disadvantages of using database systems. The very first one is the cost is very high because everything is controlled with the help of your softwares. So, and that softwares are costly. Next is high hardware cost. Everything is available on the servers. Server costs are there.
Additional memory and processing powers may be required to run the DBMS, resulting in the need to upgrade the hardware. According to that, you have to upgrade your hardware, which increase your hardware cost to implement the concept of database. Next is high conversion cost. देखो, जो ऑर्गेनाइजेशंस अभी तक फाइल सिस्टम को यूज़ कर रही थी, अगर उन्हें अब डेटाबेस सिस्टम्स पे शिफ्ट करना है, सो they need to load their files into the database, which may be a difficult or time consuming process also. Then is higher programming cost, because a DBMS is a complex tool होता है with many features. It requires experienced programmer, resulting in extra payment for hire the expertise. Okay, next is backup and recovery are difficult. This is because of increased complexity, okay, and because databases are often processed by several users concurrently. बहुत सारे यूज़र्स एट ए टाइम पे डेटाबेस को क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है. अब गूगल का डेटाबेस है, ठीक है, गूगल का डेटाबेस है, बहुत सारे यूज़र कंकरेंटली उसको एक्सेस करते हैं. सो अगर उन डेटाबेसेस में कुछ चेंज भी होता है तो एवरीथिंग इज स्टोर्ड ऑन द डेटाबेस. सो बैकअप एंड रिकवरी आर मोर डिफ़िकल्ट. सो दिस इज़ all about for today. In next tutorial we will continue with the next topic. So have a nice day, students.